maybe financially or in other ways. We ask that, Lord, you'll bless them. And even as we continue in this second half, Lord, we open our hearts to you. We open our minds to you. Come, Holy Spirit, as teacher. Come as the one who explains the mysteries of the Lord. Come and open our hearts to receive from you. If there be any barrier, if there be any walls, if there be any resistance, Lord, we break that in the name of Jesus. We ask, Holy Spirit, that you will open our hearts and prepare us to receive all that you have for us. We pray for your servant, Pastor Robert, who is coming to speak this afternoon, that, Lord, you'll anoint him, that you'll speak through him. We thank you for our worship team. Even as they sing, as they lead us in worship, Lord, will you anoint them and open our hearts to receive all that you have for us. That this afternoon we'll know healings, we'll know transformation in our lives, we'll know uplifting and encouragement where we need it. For everybody, thank you for a promise of your word in Joel 2:28. That in the last days I will pour my spirit upon all flesh. Upon all flesh. And so we lift our hands saying, pour your spirit on me. Let's say that together, everybody. Pour your spirit on me, O Lord. And again, pour your spirit on me, O Lord. And again, pour out your spirit on me, O Lord. Let's give the Lord a big clap of praise. Amen. Thank you. Before we start our worship, I just wanted to request, guys, some people are just blocked outside. So these are the registration numbers I'm just giving to you. It's BMW YF12HYO. YF12HYO. Please move your car. It's MG WP71NJO. Need to move, please. LF25HED need to move as well. FP20OCM need to move. Blue Nissan GK68ZHM need to move as well. So please give a round of applause once again to our worship team. And now in second session, Sarwat Nadeem will be leading this session. And give a round of applause for her. Because I have to go home as well. Safely. Over to you, Sarwat. God bless you. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and glad be in it. Amen. In John chapter 4, verse 24 is written, God is spirit, and his worshipper must worship in spirit and truth. So this is the time we need to stand up and let's make a connection with our Lord Jesus Christ, because he is the King of Kings and Lord of Lords. And he is the holy and holiest Lord. Let's fix our hearts and minds on him. Don't let anything come between you and him. Only you and Lord Jesus Christ. And the Holy Spirit guides you and leads you. And put all your requests, all your desires, everything on his throne. But first, make a connection with him. And let Holy Spirit breathe in you and refresh you and touch you. Touch your heart, touch your mind. And if anything going in your mind, he will take away. In first session, we learned the Holy Spirit is a helper, is an advocate, is a teacher. And he's helping us to understand the God's words. In Acts chapter 1, verse 8, you will receive the power. Our Lord Jesus Christ, the full of power. And then the Holy Spirit comes. At the moment we are empowered.
because Holy Spirit, according to His promises, is between us. Is touching our hearts and minds. Is giving us strength. Is helping us. When Pastor Khaled preached, what I was thinking, that here we have 100, 200 or people more than that. If we all empowered with Holy Spirit, we will go out and win the nation of St. Paul's, because we have lots of mosques and mandirs around us. So we need to win all these people and bring them to Lord Jesus Christ and give them the good news. Lord Jesus Christ, we are going to enter into praise and worship, Lord. When we give you praise and worship with truth, Lord, you come between us and you are enjoying our worship. जब हम रूह और सच्चाई से इसकी प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारे दरमियान में मौजूद होता है और हमारे दरमियान में जुम्बश करता है। खुदावंद एक एक रूह, एक एक जान को छूना है खुदावंद। अब आप हम पाक रूह के प्यासे हैं खुदावंद, हमारे दामन भर दे है खुदावंद के खुदावंद। आज खुदावंद जो लोग सेकंड सेशन में आए खुदावंद, उनको भरना है खुदावंद के खुदावंद। पहले सेशन के जो लोग आए खुदावंद, उनको भी भरना है खुदावंद। कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए खुदावंद के खुदावंद। हम सब आए खुदावंद तेरे पाक रूह से ममूर होके जाए। आइए हम अपना पहला गीत गाएंगे, पाक रूह हम तेरे प्यासे हैं, खाली दामन खाली कांसे हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां भर के खूब भरना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद एक एक को भरना अपने पाक रूह से खुदावंद। हम अपने आप को खाली करते हैं खुदावंद, और अपने पाक रूह के वसीला से खुदावंद एक एक जिंदगी को, एक एक जान को खुदावंद भरना, खुदावंद ब्लेस करना खुदावंद। और कोई भी यहाँ से आज खाली ना जाए खुदावंद। खुदावंद हमारी वो गलतियाँ, हमारी कोताहियाँ, हमारी वो खुदावंद जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में तुझसे हमें दूर करती हैं खुदावंद, वो आज हम यहीं पे छोड़ कर जाना चाहते हैं खुदावंद, और तेरे पाक रूह से भर के यहाँ से जाना चाहते हैं। यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं। हालेलुया। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियां खूब भरना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर कर हम आज अपने लोगों पर पाक यीशु से मिलना चाहते हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है।
पे तू दिलाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं। सिखाता जा, गलबा मुझे पे तू दिलाता जा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गलबा मुझे पे तू दिलाता जा। ईमान भी बढ़ाता जा, साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए आते हैं, पाक रूह यीशु के प्यासे हैं। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं। बंधनों से रिहाई पाएंगे, बंधनों से रिहाई पाएंगे। पूरे यीशु से खुलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है, खाली कासे हैं। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसीह की बातें हैं। बंधनों से रहाई पाएंगे, खून यीशु से धुलना चाहते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड्स। जो खुदा की सांसें हैं वो पाक रूह की सांसें हैं, और जो मसीह की सांसें हैं वो पाक रूह की सांसें हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं और पाक रूह को इनवाइट करें अपनी ज़िंदगी में। जब आप उसके पास आते हैं तो सब बंधन टूट जाते हैं, सब बीमारियों से रहाई पाते हैं, सब मुश्किलों पे काबू करते हैं। Holy Spirit, give us the power to overcome all temptations, all difficulties, all diseases, all problems. खुदा हम आपके नाम को जलाल देते हैं और आपकी मौजूद के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद के खुदावंद।
आए खुदावंद आज सारा दिन हमने आपके साथ गुजारा है खुदावंद के खुदावंद, बाकी जो दिन है खुदावंद के खुदावंद वो भी हम आपके साथ गुजारना चाहते हैं खुदावंद के खुदावंद। आए खुदावंद तो हमें पाक और साफ करना, क्योंकि आए खुदावंद हमारा खुदा पाक है खुदावंद। आए खुदावंद मैं पास्टर रॉबर्ट को आपके हाथों में देती हैं खुदावंद, जो पाक कलाम आपने उनको दिया है खुदावंद के खुदावंद, आ खुदा का पाक रूह उनके थ्रू हमारे साथ बात करे खुदावंद। हम सब अपने बंधनों से आए खुदावंद आज़ाद हों, हम सब अपनी आए खुदावंद जो राहें हमने चुनी है खुदावंद के खुदावंद, तो हमारी राहों को हमवार करे खुदावंद। जो आपकी खिदमत करना चाहता है खुदावंद तो उसके रास्तों को हमवार कराए खुदावंद के खुदावंद। शैतान के तमाम शैतानी हमलों से बचा के रखा है खुदावंद। आ खुदावंद तू हमें शैतान पे गलबा पाना सिखा है खुदावंद। होली स्पिरिट के वसीले से हम खुदावंद हम मौजी पे या खुदावंद गलबा पाते हैं खुदावंद। आ खुदावंद हमारा जिस्म हमारी बॉडी है खुदावंद के खुदावंद आपका मंदिर है। और खुदावंद आप चाहते हैं कि आपका मंदिर क्लीन हो, पाक हो, गुनाहों से पाक हो। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 में लिखा है, पौल ने कहा है, all believers bodies sacrificed and dwelling place for God's Holy Spirit। हम सब जो बिलीवर हैं हमारी बॉडी इतनी पाक होनी चाहिए कि उसकी जो होली स्पिरिट है ऑल द टाइम डिवेल्ड ऑन आवर बॉडी। खुदा में एक एक जान एक एक रूह के आपके सामने देती है खुदावन, हमें छूना और बरकत देना। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्श दे, आमीन। हम अगला गीत गाएंगे, मैं मंदिर हूँ तेरा जिंदा घर। प्लीज खड़े हों। हालेलुया। मेरी सांस में तेरी सांस है। खुदावंद ने अपनी सांस हमें दी है। खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसके नथनों में जिंदगी के दम को फूका, लेकिन जब खुदावंद मसीह हमें नई जिंदगी देता है तो वो पाक रूह को हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो मसा करता है, अपने पाक रूह को हमारी जिंदगी में भेजता है, हमारी सांस बनाता है। हालेलुया। तेरी सांस में, तेरी रूह में
खुदा खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा मैं मंदिर हूँ प्रभु का मंदिर हूँ पवित्र मंदिर हूँ ऐ मददगार तुझसे है प्यार ऐ पाक रूह सिखला मुझे अपना कलाम हालेलुया दिखला मुझे राह तूने मुझको चुना मुझ में रहने लगा ऐसा मुझ पे करम है किया पापी इतना बड़ा जो गुनाहगार था अपना बेटा मुझे दे दिया ओ मैं मंदिर हूँ तेरा ओ जिंदा घर हूँ तेरा मैं मंदिर हूँ तेरा ओ जिंदा घर हूँ तेरा मेरी अंदर तेरी होगी रज़ा यही बन गया मेरा सारा जीवन है खुदा खुदा मैं मंदिर हूँ तेरा मैं मंदिर हूँ प्रभु का मंदिर हूँ पवित्र मंदिर हूँ Thank you. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. आय मददगार तुझसे है प्यार। Thank you, Lord. Yes. आय पाक रूह सिखला मुझे Hallelujah. अपना कलाम Yes. दिखला मुझे राह तू So when the Holy Spirit comes, जब Holy Spirit आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपको सिखाता है, आपको राह दिखाता है, आपको the Jesus Christ is the way of life and truth और वो सच्चाई का रास्ता दिखाता है। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगला हम गीत गाएंगे। If anybody want to sit, okay. अगला गीत हम गाएंगे यीशु तेरा लहू इन फज़ाओं में मौजूद है। There is a power in the blood of Jesus Christ. Power to save us, power to heal us, and power to restore us. The blood of Jesus is our victory. He gave us the victory over death. He gave us the victory over to love one another. Nobody else gave the example of love and forgiveness. Only our Lord Jesus Christ. He gave us the power to forgive one and each other and love one another. So आइए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे तो गीत गाएंगे यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। उसका खून इन फिजाओं में मौजूद है और वो पावर रखता है हमें हील करने की, टच करने की। इन फिजाओं में वो मौजूद है। आइए हम ताली बजा के खुशी से उसकी हमदो तारीफ करेंगे। Praise the Lord. यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। खुदावंद के रूह को महसूस करें, वो टच करता है और जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया। 2000 साल पहले जो सलीब पर बहाया गया खून है वो आज भी मोजज़ात करता है, वो आज भी जिंदगियों को जिंदगी बख्शता है, वो आज भी बीमारियों से शिफा देता है, वो आज भी भटके हुओं को रास्ते पर लेकर आता है। हालेलुया। मिलके गाएंगे ताली बजा के। हालेलुया।
कुदरत जी कर तेरी सले वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा उठा ले गया वो सारे गुनाह उठा ले गया वो सारे गुनाह तू वो बल्ला खुदा का सबके लिए जो हुआ तू वो बल्ला खुदा का सबके लिए जो हुआ यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है लहू की हर बूंद बूटी बनी हवाओं में मौजूद है लहू की हर बूंद बूटी बनी हवाओं में मौजूद है आज तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर वो जो ना कभी सुना ना देखा आंखों ने नया तू काम कर अपनी अपनी जिंदगी के लिए मांगे कि मेरी जिंदगी में आ तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर वो जो ना कभी सुना ना देखा आंखों ने नया तू काम कर वो जो ना कभी सुना ना देखा आंखों ने नया तू काम कर अपने लिए मांगेंगे हमें माफ कर हमें साफ कर हमें पाक कर हमें साफ कर अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह हालेलुया अपने खून की धारा से धो दे तू सारे गुनाह है प्यासी नई जिंदगी और फिर से रमा मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा हालेलुया मुर्दा हड्डियों को जिंदा तू कर दे मेरे खुदा यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू फिजाओं में मौजूद है तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है खाकसारी से दुआओं में झुके बदी से फिर के खुदा आसमां को खोल दे बहाल हमको फिर से कर दे आ खुदा खाकसारी से दुआओं में झुके बदी से फिर के खुदा खाकसारी से दुआओं में झुके बदी से फिर के खुदा आसमां को खोल दे बहाल हमको फिर से कर दे खुदा आसमां को खोल दे बहाल हमको फिर से कर दे खुदा
रूहे पाक से तेरे दीदार के हो गए हम तालिब खुदा तेरे दीदार के हो गए हम तालिब खुदा प्यासी ज़मीन से राब तू कर प्यासी ज़मीन से राब तू कर अपनी पाक हज़ूरी का बादल यहाँ बरसा Bless the Lord अपनी पाक हज़ूरी का बादल यहाँ बरसा यीशु तेरा लहू इंतज़ारों में मौजूद है की मरबूद रोकी इन हवाओं में मौजूद है इन हवाओं में मौजूद है इन हवाओं में मौजूद है तू अपने जोर में जाहिर जलाल कर हमको बहाल कर। जब हम जी गा रहे थे तो मेरे ज़हन में पाकिस्तान, कंट्री ऑफ पाकिस्तान एंड कंट्री ऑफ इंडिया का सीन आ रहा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन है। एंड देन आई वाज प्रेइंग फॉर यूके के खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है पब्स की तरफ माइल है, जो कि समटाइम इज़ वेरी पेनफुल। मेरा ख्याल है कि आप सब लोग मेरे से एग्री करेंगे। हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे एंड वी विल प्रे फॉर कंट्री फॉर पाकिस्तान सो गॉड ब्रिंग रिवाइवल। अपने ज़ोर से वो उस कंट्री में रिवाइवल लेके आए एंड यूके में रिवाइवल लेके आए और अमेरिका में रिवाइवल लेके, पूरी दुनिया में रिवाइवल लेके आए। एक्चुअली ही इज़ कमिंग थ्रू द विजन, द पीपल लाइव्स आर चेंजिंग and now the God kingdom is closer. He's coming soon. So we need to prepare ourselves and we need to prepare the people around and we need to save their life. So आइए हम सब खड़े होके अपनी अपनी ज़ुबान में हाथ खड़े करके हम इन चीज़ों के लिए दुआ करेंगे। खुदा खुदा बच्चों के लिए दुआ करती है। खुदा तो जिंदगी हो जाए, खुदा लोगों में रिवाइवल है क्या है खुदा की, खुदा तो छू है, खुदा तेरा पाक रूह है, खुदा इन कंट्रीज में जुम्बश करे, खुदा तो के लिए दुआ करती हैं, खुदा दुआ करती हैं, बच्चों को अपने पास ले खुदावन तो भला तेरी शफकत अब्दी तेरी वफादारी पुश्त रहती है। आए खुदावन देखिए खुदावन आपकी मौजूदगी के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, खुदावन आपकी पावर के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके होली स्पिरिट के लिए। आज बाप मैं इस वक्त पाकिस्तान को, यूके को, यूएसए को, ऑल अदर कंट्रीज़ इंडिया को आपके आए खुदावन कदमों में लेके आती हैं। खुदावन जो लोगों पे जुल्म हो रहे हैं, खुदावन जो परसिक्यूशन हो रही है, खुदावन देखो खुदावन आप अपने लोगों को सेव करें, खुदावन तेरा पाक रूह आए खुदावन इन कंट्रीज़ में जुम्बश करे। खासकर है खुदावन मैं यंग लोगों के लिए दुआ करती हैं, खुदावन के खुदावन उनके रास्ते आए खुदावन तो चर्च की तरफ लेके आए, खुदावन उनके रास्तों को आए खुदावन के खुदावन पब्स की तरफ से आए, खुदावन मोड़ दिया खुदावन अपने घर की तरफ ले आए खुदावन। वो जहाँ कहीं भी जाएं आए खुदावन तो उनकी ज़िंदगियों को आए खुदावन तो छू आए खुदावन, वो जीसस क्राइस्ट को टेस्टिफाई करें, ना कि आए खुदावन दुनियावी चीज़ों को आए खुदावन, जिस तरह वो फिजिकल एजुकेशन में बढ़े आए खुदावन और तेरे पाक रूह से भर जाए। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो पढ़ते हैं। आइए हम अगला गीत गाएंगे। अमर तेरी हमदों से ना, ये हमने रिसेंटली सीखा है, मिलके गाएंगे ताली बजा के खुदा की हमदों
करेंगे. And during this song, pray for Pastor Robert as well, that God prepare him and bless him. Hallelujah. सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, सुनावा तेरी हमदो सना, तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा. तेरी मोहब्बत गाऊंगा रवा मैं सदा, ईद तेरी मोहब्बत गाऊंगा रवा मैं सदा, तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा. ਜਦੋਂ ਪਿਆਸਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਖਾਈ ਚ, मैं ते डूबिया सा पाप दे गहराई च, जदों डिगया सा मैं मौत दी खाई च, मैं ते डूबिया सा पाप दे गहराई च, तूने दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा, तूने दे के कफारा मेरा कीता मैनू रहा. तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा. करा शुक्र तेरा, तेनू सजदे करा, जिंद अपनी मसीह तेरे ना करा. शुक्र तेरा तेनू सजदे करा, जिंद अपनी मसीह तेरे नाम करा. करा शुक्र तेरा, तेनू सजदे करा, जिंद अपनी मसीह तेरे नाम करा. जिथे जावा करा है यसू ऊंचा नाम तेरा, जिथे जावा करा है यसू ऊंचा नाम तेरा. सना मैं सुनावा है मेरे खुदा, तेरी हमदो सना मैं सुनावा है मेरे खुदा. मेरे जीवन दा है खुदा प्यार तू, कदी छड़दा नहीं नाल हर बार तू. मेरे जीवन दा है खुदा प्यार तू, कदी छड़दा नहीं नाल हर बार तू. झूठी दुनिया है मेरे खुदावन तू ही बाबा, झूठी दुनिया है मेरे खुदावन तू ही बाबा. तेरी हमदो सना
हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु के नाम के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी हमदो सलाम है सुनामा ऐ मेरे जीवन दा ऐ खुदा प्यार तू कदी छड़दा नहीं नाल हर वार तू झूठी दुनिया ते मेरे खुदावन तू ही बावफा। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर फेथफुलनेस, for that Lord, that you send your son our Lord Jesus Christ to here to save us, Lord. Thank you, Lord. Once again, Lord, we commit ourselves in your service. We commit ourselves in your hands, Lord. Bless each and everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Let's have our word. And मैंने रिक्वेस्ट की पास्टर यूनुस से कि वो मुझे एक पंजाबी बोलने वाला नाम दें जो बाइबल रीडिंग करें पंजाबी में। सो सिस्टर प्रवीण मसीह जो हैं वो हमारे लिए करेंगी रीडिंग पंजाबी में, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं पढ़ूंगी रसूलां दे किताब 1 बाब ਉਹਦੀ 8 आयत। पर ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ मेरे गवाह होगे। ये खुदा का वचन है, इसके पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदा आशीष बरकत दे। Okay, so first I will want you to give 2 notices. There's somebody have found this ring in the bathroom. If it's your ring, you can have it from me. Omer, this is yours? You can have it, yeah. Okay, अगर आपको आपकी है तो ये आप मेरे से ले सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। What's gonna happen if you have a birthday and you don't get any gift? Yeah? That's what I'm saying. We had a birthday of our vicar. We cut the cake and we didn't give him anything. Oh, come here. Come. Yes, nice hair, Sarvat. Plate. This is from everybody, okay? So please give a round of applause. This is for you. Thank you very much. And this is your card. Thank you. And as usual, how come the people come here and then don't wear the tie, So this is for you. That's why. Thank you. God bless. Congratulations once again. Thank you so much, everybody. So much love from me to you as well. Thank you. Thank you. Pastor Robert, जोरदार तालियां Pastor Robert के लिए। खुदावंद के खादम के लिए, आज के वचन के लिए हम दुआ करते हैं, और मैं वचन के लिए दुआ करने के लिए पास्टर यूनुस से दरख्वास्त करूंगा कि वो आकर आज के कलाम के लिए पादरी साहब के लिए दुआ करें और अनॉइंटिंग के लिए सब के लिए। प्रभु यीशु दे नाम सारा नु सलाम। जय मसीह दी। जागदे आ सारे? अच्छा, चेक कर लेने किन्नियां नु खाना चंगा लगा। हुण आपां रूहानी खाना खाना, फिर भी मैं चेक कर लेना आ। जिन्हां नु चंगा नहीं लगा बोली हालेलुया। जागदे रहना, वचन की सुनाना है। कई बार असीं ऐवें हालेलुया बोल दिंदे, पता नहीं की कहा कि नहीं कहा, है ना। तो आओ असीं सब खड़े हो जावांगे खुदा दे कदमां ते, अपने कदमां ते खुदा दे कोलों दुआ करांगे कि जो खुदा दे दास नूं उन्हें अपना वचन दिता है वो साडियां जिंदगियां नूं बदलण वाला होवे। खुदा दे पाक कलाम में लिखा है, घाह सुक जांदा ते फुल मुरझा जांदा है, पर साडे खुदा दा वचन हमेशा तक कायम रहेगा। हालेलुया। अपने सिरां नूं झुकावांगे, अखां नूं बंद करांगे। जिंदा मेहरबान खुदा बाप, तुहाडा शुक्र करते हैं तुहाडे पाक कलाम दे लई, जो सुबह भी बड़ी भरपूरी दे नाल तू अपने दास नूं इस्तेमाल कीता, असीं उन्हां दे लई शुक्र करते हैं। और हुण
तेरे दास रॉबर्ट ਲਈ दुआ करते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम विच खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाक ना प्रभु जो वचन तेरे दास के मन च पाया है वो होने दे खुदावंद तेरा शुक्र हो क्योंकि तेरा कलाम जदों आउंदा है तां हथौड़े दी मानद चट्टानां नूं चकना चूर कर दिंदा है साडे घमंड नूं तोड़ दिंदा है साडीआं जिंदगियां नूं बदल दिंदा है तेरे कलाम दी कुदरत है प्रभु जी तू इसलिए अपना कलाम रखिया है कि असीं उहदे द्वारा साडीआं जिंदगियां विच एक तब्दीली आवे तेरा शुक्र करदे खुदावंद अज जदों वचन सुनाया जावे तां साडे सारिआं दे वास्ते एक नवीं रोशनी आवे खुदावंद प्यारे परमेश्वर तेरे कलाम दीयां गल्लां साडी जिंदगी विच विश्वास पैदा करदियां साडी जिंदगी नूं बदल दिंदियां इस कलाम दी कुदरत है जो मेरे मन नूं ओ दृढ़ करदी है कि चाहे मैं मौत दी छाह दी वादी च फिरां पर किसी बदी तो नहीं डरांगा क्योंकि ये कलाम ही मैनूं दसदा है कि तू मेरे नाल है हालेलुया अज भी अपने कलाम दे राहीं साडे नाल गलबात कर प्रभु यीशु मसीह नाम च मंगदे हां आमीन खुदा सबरन बरकत बैठ जाइए गॉड ब्लेस यू हालेलुया खाना किस किसने ज्यादा खाया है जरा प्लीज जोर से बोले हालेलुया खुदावंद के नाम की तारीफ अच्छा लगता है जब खुदावंद के लोग रिस्पांस देते हैं क्योंकि जो जिंदा चीज होती है वो मोमेंट करती है वो हरकत करती है इसलिए जितने लोग यहां पर जिंदा हैं प्लीज रिस्पांस देते रहें हरकत करते रहें जो कुछ आप धरती पर करेंगे जो कुछ आप धरती पर कर सकते हैं वो आप करें जो आप धरती पर नहीं कर सकते मेरा और आपका खुदावंद करेगा हालेलुया 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 Mic check, just raise it. Mic check, 1 2 3 4. Hello. Yes. इस यहाँ से पकड़ना है। जो आप कर सकते हैं वो आप धरती पर करें लेकिन जो आप नहीं कर सकते मेरा और आपका खुदावंद आपके लिए और मेरे लिए करेगा हालेलुया हालेलुया जरा जोर से बोले हालेलुया सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद ने आज मुझे यह अवसर दिया है कि आज मैं आपके साथ खुदावंद के वचन को बांटूं और मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर नीम जी का जिन्होंने मुझे ये मौका ये अवसर बख्शा है और उन्होंने मुझे वो इज्जत दी है जब सुबह में आया लेकिन मैं जानता हूं मैं उस इज्जत के योग्य नहीं और मैं सारी इज्जत सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद के हाथों में देता हूं क्योंकि वचन कहता है ना तो धरती के नीचे ना धरती के ऊपर ना स्वर्ग में कोई इस तरह का नाम दिया गया है खुदावंद खुदा जो आपके नाम को इज्जत दी गई मैं उसके लायक नहीं योग्य नहीं प्रभु आज मैं स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर वो इज्जत जलाल स्तुति महिमा बुजुर्गी आपके हाथों में देता हूं यीशु मसीह के नाम से आमेन खुदावंद का वचन कहता है मैं तुझे खाक से उठाकर पतवंतों में प्रधानों में बिठा दूंगा और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद के दास लोग डॉक्टर जी जो पाकिस्तान से हमारे बीच में हैं पास्टर सैम पास्टर यूनस और भी खुदावंद के बेटे बेटियां खुदावंद के दास और दासियां हमारे बीच में हैं खुदावंद आज अपने वचन के मुताबिक आपके बीच में मुझे लेके आया है और मैं बड़ा आनंद होता हूं जिस चर्च में पवित्र आत्मा का जिक्र होता है सॉरी किस किस को हिंदी समझ आती है तकरीबन सभी को
बड़ा खुश होता हूं जब पवित्र आत्मा का जिक्र होता है, क्योंकि ऑल टाइम के समय में जैसे खुदावंद के दास डॉक्टर साहब बातें कर रहे थे कि पेंटिकॉस्ट एक एक्सपीरियंस है, वो मिशन नहीं। लेकिन ऑन टाइम में सबसे पहले आप सभी जानते हैं कैथोलिक मिशन सबसे पहले चर्चा में आया, क्योंकि प्रभु यीशु के समय में, उस समय रोमन्स का राज्य हुआ करता था, तो उन्होंने उसके बाद वो सारा होल्ड कर लिया और सारे चर्चेस कैथोलिक के अंडर हैं। लेकिन वो कैथोलिक चर्च धीरे धीरे पॉलिटिक्स में चलता चला गया, और ऑल टाइम में लोग, खुदा के दास लोग, मैं किसी की बुराई नहीं करता, वो पैसा लेकर लोगों के गुनाहों के लिए माफी के लिए प्रार्थना करते थे। पैसा दिया जाता था तो गुनाह माफ किए जाते थे। और उसके बाद प्रोटेस्टेंट आए जिन्होंने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद बैप्टिस्ट चर्च आया जिन्होंने बैप्टिज्म के ऊपर बातें करी, और उन्होंने दूसरी तरीके से बपतिस्मा देना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले कैथोलिक लोग सर पर पानी डालकर, वो छींटे डालकर बपतिस्मा देते थे। लेकिन खुदावंद के दास विलियम जोसेफ सी मोर के मन में यह बात आई, क्या पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के जीवन में या प्रभु यीशु के समय में कार्य करता था। तो वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 1906 में उन्होंने मिलकर प्रार्थना की, जिस तरह पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा 1906 में, उसी तरह पवित्र आत्मा की आग उतरी और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। लेकिन आज भी समा उसी तरह आगे आ गया है कि बहुत सारे चर्चेस में पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं किया जाता, उस सहाय का, उसके मददगार का जिक्र नहीं किया जाता। मुझे बड़ा आनंद हुआ जब पास्टर नीम ने मुझे ये वर्ष भेजी कि पवित्र आत्मा के बारे में ये कन्वेंशन की जा रही है, तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने मुझे कुछ आयतें भेजी, जैसा कि बहन प्रवीण ने पहले हमारे साथ मिलकर आयत को पढ़ा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, रसूलों के कर्तव्य एक्ट्स में 1:8 में ऐसे लिखा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब यह है, इसी तरह खुदावन ने अपने चेलों से भी कहा जाते वक्त कि तुम सारी दुनिया में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, जो विश्वास करो से बाप बेटा और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन हम यहां तक कि कई बार सीमित रहते हैं, प्रचार करते हैं, बपतिस्मा देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो खुदावन ने कहा था कि अभी यरूशलेम में ही ठहरे रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पालो, वो सामर्थ्य ना पालो। इसका मतलब यह था, उस समर्थ के बिना या उस ताकत, उस बल के बिना चेले कुछ भी नहीं थे। अगर आप और मैं पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं हैं, तो हम किसी के जीवन को नहीं बदल सकते। बदलने वाला पवित्र आत्मा है, खुदावंद का आत्मा है, खुदावंद है। वचन में लिखा है कि वो प्रभु यीशु आत्मा है, और जहां आत्मा होता है वहां आजादी होती है। मेरे बहन भाइयों, अगर हम आत्मा पाए हुए लोग नहीं हैं तो हम आजाद भी नहीं हैं। अगर हम आजाद नहीं हैं तो क्यों कर किसी को आजाद कर सकते हैं? हालेलुया, जरा जोर से बोले हालेलुया। अगर हम खुद आजाद नहीं हैं तो हम किसी को आजाद नहीं कर सकते।
मेरे को जो वर्स दी गई थी, इन पावर, एम्पावर फॉर गॉड्स मिशन, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए सशस्त्र, शक्तिशाली, इन पावर, समर्थ, होली स्पिरिट, या कह सकते हैं अथॉरिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ। जैसा कि हमने सुबह सुना दास के मुंह से, वही पतरस जो डर के मारे 3 बार प्रभु यीशु का इनकार करता है, वही पतरस पवित्र आत्मा के बाद बाहर निकलकर प्रचार करता है। और पहले क्रूसेड में, पहली मीटिंग में 3000 लोग खुदावंत के राज्य के लिए तैयार होते हैं, और दूसरी मीटिंग 8000। 2 मीटिंग करने के बावजूद 8000 लोग खुदावंत के पास आ गए। मेरे बहन भाइयों, हम कितने समय से कन्वेंशन कर रहे हैं, कितने समय से कन्वेंशनों का हिस्सा हैं या जा रहे हैं, कितने लोगों को बचते हुए या खुदावंत के पास आते हुए देखा है। यहां पर ज्यादातर लोग, मेरा ख्याल सारे ही पहले से खुदावंत को जानते हैं। कन्वेंशनों का, मीटिंग का हिस्सा वही लोग ज्यादातर होते हैं जो प्रभु के बारे में पहले से जानते होते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसा कि मुझे वर्स दी गई है, एम्पावर फॉर गॉड्स मिशन। सबसे पहले हमें मिशन का पता होना चाहिए, हमारे अपने टारगेट का, हमारे गोल का पता होना चाहिए, तभी हम खुदाबंद के लिए काम कर सकते हैं। मसीही हैं, हमें अपनी मिशन के बारे में, अपने टारगेट के बारे में, मैं वो वाली मिशन की बात नहीं कर रहा जैसे हम कहते हैं कैथोलिक, रोमन कैथोलिक या पेंटिकॉस्टल, CNI या और इस तरह की, मैं उस मिशन की बात नहीं कर रहा। मैं उस गोल की, उस टारगेट की, टास्क की बात करता हूं। बहुत सारे लोग उस टास्क के बारे में नहीं जानते, तो क्या उस टास्क के लिए क्या करेंगे? पहले टास्क की बात करें, पहला जो टास्क आया वो प्रभु यीशु के पहले आया, और दूसरा जो टास्क आया वो प्रभु यीशु के जाने के बाद आया। पहला टास्क अगर आप देखना चाहते हैं, जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसकी 3 में जब पहला गुनाह हुआ, जब आदम और हवा ने पहला गुनाह किया, 3:9 में लिखा है, खुदावंद शाम के वक्त उनसे मिलने आया और कहा, आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? आज खुदावंद आपसे और मुझसे कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू कहां है? और 3:15 में लिखा है, जब उसने श्रापित किया और हवा को कहा, मैं तेरे और सांप के बीच में, सांप से कहा, मैं तेरे और औरत की संतान के बीच में। वह डालूंगा कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पहला टास्क, औरत की संतान, मरियम का वो बेटा प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए वो टास्क आया। और उसने वो टास्क अपनी जान देकर भी पूरा किया। वो टास्क क्या था? आपका और मेरा रिश्ता जो पिता से, जो प्रभु से टूट गया था, उसके लिए ये टास्क आया। प्रभु यीशु के लिए ये टास्क आया कि वो रिश्ते को पूरा करे, उस रिश्ते को एकदम फिर जोड़ दे। आप सभी जानते हैं, जब प्रभु यीशु ने
जब गबसमनी बाग में दुआ करी, वो अपने दुखों को, उस सूली को, उन कीलों को, उस कांटे के ताज को मेरे बहन भाइयों देख रहा था। उस दुख को वो महसूस कर रहा था। इसीलिए वो अपने पिता से कह रहा है, ए पिता, ये प्याला मुझसे टल जाए, बल्कि मेरी नहीं। जब उसे याद आया होगा वो टास्क जो मुझे दिया गया है, अगर मैं आज पिता से कह दूं ये प्याला टल जाए, ये मौत, ये दुख, ये तकलीफ, ये कमजोरी टल जाए, तो आज हम यहां पर बैठकर उसके नाम को जला ना देते होते। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु के लिए टास्क आया। फिर उसने कहा, है पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब उसने सूली पर जान दी, मेरे बहन भाइयों, बाइबल में लिखा है कि पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, ना कि नीचे से ऊपर को फटा। अगर हम ऐसे कर्टन लगा हो, यहां पर एक बड़ा पर्दा लगा हो, अगर मैं ऐसे फाड़ना चाहूं तो मैं कैसे फाड़ूंगा? ऐसे मैं नीचे से ऊपर को फाड़ूंगा। करके देख ले, ऊपर से नीचे को करके देखे, कोई कर सकता है ऐसे? लेकिन जब खुदावन यीशु ने अपनी जान दी, वो रिश्ता आपका और मेरा एक बार फिर पिता से जुड़ गया। वो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे को फट गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज का वचन आपको समझ आ गया, मैं ये जानता हूं हमारी जिंदगियां जैसे पहले थी वैसे नहीं रहेंगी। हालेलुया। उसने अपने टास्क को अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर पूरा किया मेरे बहन भाइयों। लेकिन वचन कहता है, जिंदा होने के बाद जब वो चेलों के साथ रहा 40 दिन, उनसे बातें करता रहा, उनके बीच में रहा, और जाते वक्त दूसरा टास्क वो आपको और मुझे दे के गया। कौमों में जाओ, मत्ती 28 उसके 19-20, कौमों में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। जो विश्वास करो रे बाप, बेटा और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। दूसरा टास्क आपके लिए और मेरे लिए है मेरे बहन भाइयों। कई बार हम खुदा के साथ लंबे समय से चलते हैं, कन्वेंशनों में जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, लेकिन अपने टास्क को पहचान नहीं पाते। कौमों में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो, जो विश्वास को उसे बाप, बेटा और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन दूसरा टास्क आपके लिए और मेरे लिए है। लेकिन हम बिना बल के, बिना सामर्थ्य के उस टास्क को पूरा नहीं कर सकते। इज़ाया में ऐसे लिखा है, उसकी 6:8 में यहां पर लिखा है, तब मैंने प्रभु का वचन सुना। यशाया 6:8, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज कितने लोग आज का वचन सुन रहे हैं, और आज खुदावंत का आत्मा आपसे और मुझसे कह रहा है, जो टास्क मैंने दिया है, जो कार्य मैंने तुम्हें दिया है, उसके लिए कौन जाएगा? कई बार हम कहते हैं ये सिर्फ उन एवेंजलिस्ट जो खुदा का काम करते हैं सिर्फ उनके लिए है, ये वचन सिर्फ पास्टर लोगों के लिए है। लेकिन नहीं मेरे बहन भाइयों, आज खुदावंद आपसे और मुझसे पूछ रहा है, कौन जाएगा? किसको भेजूं? मेरे लिए कौन जाएगा? कौन आप में से है जो कहे, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज।
आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं मेरा काम ठीक है, मेरा काम चल रहा है, मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम यही है, मरीजों की सेवा करना, मैं ये जॉब करता हूं, मेरा काम यही है। लेकिन आज खुदावंत का आत्मा आपसे और मुझसे पूछ रहा है, कौन जाएगा या मैं किसको भेजूं? हम में से कौन है जो ये कहे, प्रभु मैं तैयार हूं, तू मुझे भेज। हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से बोले रिस्पॉन्स देने वाले को। मैंने पहले कहा था, अगर जो आप धरती पर करेंगे, जो कर सकते हैं वो करें, जो आप नहीं कर सकते वो आपका और मेरा खुदावंद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब धरती पर खुदा के लोग कुछ ना कुछ करते हैं मेरे बहन भाइयों, तो स्वर्ग में कुछ ना कुछ होता है, स्वर्ग में हलचल होती है मेरे बहन भाइयों। अगर स्वर्ग में हलचल होगी तो हमारी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी मेरे बहन भाइयों। हालेलुया। कुछ ना कुछ करना है। हम चर्चों में सिर्फ बैठने के लिए नहीं, वचन सुनने के लिए नहीं, या पास्टर की सुनने के लिए नहीं आते। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने चर्च से भी यही कहता हूं, आप मेरे लिए नहीं आते। कई बार हम सोचते हैं पास्टर बुरा मान जाएगा, पास्टर अब फिर पूछेगा 2 हफ्ते कहां थे। क्यों पास्टर जी ऐसा ही है? कोई भी बहन भाई पास्टर के लिए चर्च नहीं आता, हम अपने लिए आते हैं। खुदावंद चाहता हम खुदावंद के राज्य में कुछ ना कुछ करें। आपको और मुझे वो टास्क दिया गया है, खुदा के लिए कुछ ना कुछ करें। कल मैं एक मीटिंग में था, जो मेरे स्पिरिचुअल पास्टर हैं, पास्टर सलीम खान, लुधियाना से हैं, इंडिया से हैं। आपने शायद सुना होगा उनके बारे में। हम उनके साथ मिलकर सेवकाई करते हैं। कल उनकी मीटिंग थी लिवरपूल में। वो यही कह रहे थे कि खुदा के लिए कुछ ना कुछ करो, हमें कुछ ना कुछ करना, उसके राज्य में हिस्सा बोना है और उसके राज्य में कुछ ना कुछ करना है। जब धरती पर उसके लिए कुछ ना कुछ होता है, तो स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और आज खुदावंद का आत्मा आपसे और मुझसे कह रहा है, कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? यशायाह ने कहा, पिता मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। आज खुदावंद आपसे और मुझसे सुनना चाहता है कि मैं किसको भेजूं और मेरे लिए कौन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वर्ष जैसे कि हमने पढ़ी है, जाओ कौमों में जाओ मेरे नाम का प्रचार को। गो, पहले वो कहता है जाओ, उसके बाद चेले बनाओ और उन्हें बाप बेटा पाकरू नाम से बपतिस्मा दो। यहां पर यूहन्ना 20:21 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारे शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं तुम्हें भेजता हूं। अगर आप आज खुदावंद को कहेंगे तो ही ये वर्ष आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगी। अगर आप कहेंगे, पिता प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज, तब ये वर्ष आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगी कि मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। लेकिन खुदाबंद ने अपने चेलों से कहा भेजने से पहले, लूका 24 उसकी 49 और एक्ट 1
1:4, और जिसकी प्रतिज्ञा मैंने पिता से की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ जब तक तुम इसी नगर यरूशलेम में ठहरे रहना। इसलिए अगर खुदावंद के लिए हम तैयार हैं तो उस सामर्थ के बिना आप और मैं बाहर निकल के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वचन लिखा है, एक जगह पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरा उन्होंने बल पाया, सामर्थ पाई। इसका मतलब था वो बलहीन थे, वो कमजोर थे, और खुदावंद का वचन कहता है वो पुरानी मशकों में नई मैं नहीं डालता। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात है, व्हाई वी नीड ए होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा क्यों पाना चाहते हैं? जैसा कि यूहन्ना पास्टर जी ने सुबह, डॉक्टर साहब ने आयत को कोट किया था, यूहन्ना 4:16-17, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह स्वर्गदा तुम्हारे साथ रहेगा, स्वर्गदा हमेशा तक, अर्थात सच्चाई का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बंदा जो यहां पर बैठा है वो ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं हूं, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि उसकी आत्मा के बिना हम उसे परमेश्वर नहीं कह सकते। लेकिन कमी कहां है? आत्मा तो अंदर है, उसे हम एक्टिवेट नहीं करते, उसे यूज नहीं करते, उसे इस्तेमाल नहीं करते। मेरे बहन भाइयों, आज खुदावन ने आपके पास मुझे भेजा है कि वो जो आत्मा हमारे पास है उसे एक्टिवेट किया जाए। फोन है, चार्जर की जरूरत है। उस करंट के बिना, उस इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा फोन किसी भी काम का नहीं। आत्मा है, इसीलिए तो हम उसे पिता कहते हैं, पिता परमेश्वर कहते हैं, अपना बाप कहते हैं। उस आत्मा के बिना हम उसे पहचान नहीं सकते मेरे बहन भाइयों। लेकिन जरूरत है हमें उसे एक्टिवेट करने के लिए। इसाया 11:1 और 2 में लिखा है, तब यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ये आत्मा की, उस पवित्र आत्मा की क्वालिटीज है। बुद्धि का आत्मा, नॉलेज, विजडम, समझ का आत्मा, युक्ति, प्लान्स करने का आत्मा, युक्ति बनाने का आत्मा, प्रभु की युक्ति को, उसके प्लान्स को समझने का आत्मा। कई बार प्रभु बातें करता है लेकिन हमारा आत्मा जो है, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो एक्टिवेट नहीं होता। हम उसकी आवाज को समझ नहीं पाते या उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। सैमुएल जब बच्चा था, 3 बार खुदावन ने उसे पुकारा। वो भागा, एली के पास गया, क्या आपने मुझे पुकारा है?
लेकिन तीसरी बार ऐसे हुआ, एली जान गया, उसका आत्मा एक्टिवेट था मेरे बहन भाइयों। वो जान गया कि अब की बार अगर तुझे कोई पुकारे, अब की बार तुझे आवाज सुनाई दे, तो कहना परमेश्वर बोल, तेरा बेटा सुनता है। आत्मा है, एक्टिवेट करने की जरूरत है, उसे चार्ज करने की जरूरत है मेरे बहन भाइयों। आत्मा की हमने क्वालिटीज देखी हैं। सच्चाई का आत्मा, वो कहता है राह सच और जिंदगी मैं हूं। हम सच्चाई को पहचान नहीं सकते, हम उसकी आवाज को पहचान नहीं सकते। कई बार हम चर्चेस में आते हैं, मेरे बहन भाइयों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, एक्सपेक्टेशन बड़ी लेकर चर्च में आए, क्योंकि मेरा और आपका सच्चा और जिंदा खुदावंद वो बड़ा है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो जिंदगियों को बदल देता है। मेरे बहन भाइयों, छोटी एक्सपेक्टेशन, छोटी आशा लेकर कभी भी चर्च में ना आए। हमारा खुदावंद बड़ा है, वो बड़े बड़े काम करता है। वचन कहता है स्वर्ग उसका सिंहासन और धरती पांव रखने की चौकी है। जब वो बोलता है पहाड़ थरथराते हैं, समंदर सूख जाते हैं। जब उसके पास आए, अपनी एक्सपेक्टेशन के द्वारा नहीं, मेरी जरूरत क्या है या मैं कितना ले सकता हूं, उसकी जरूरत के मुताबिक कि वो आपको और मुझे क्या दे सकता है। आप मांगते हैं तो अपनी जरूरत के मुताबिक है, लेकिन जब वो देता है वो अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी पोजीशन के द्वारा आपको और मुझे देता है मेरे बहन भाइयों। हालेलुया। जो बैप्टिज्म है वो रिपेंटेंस है, गुनाहों की माफी है, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, एक सामर्थ है। हो सकता है पवित्र आत्मा पाकर आप स्वर्ग राज्य तो जा सकते हैं, लेकिन वो वचन कभी भी पूरा नहीं होगा। वचन ये कहता है बचना ही काफी नहीं, बचाने भी जरूरी है। वचन कहता है जिसको 5 तोड़े दिए गए, उसे 5 का हिसाब भी लिया गया। जिसको 2 या 1 मिला, उसने उसका हिसाब दिया। खुदावंद एक दिन आपसे और मेरे से पूछेगा कि मैंने तुझे बचाया, क्या तू इसको या उसको बचा नहीं सकता था? बचाने भी काफी हैं, लेकिन वो बचा हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, क्योंकि हमने देखा है खुदावंद आत्मा है। प्रभु यीशु के बिना, उसकी सामर्थ के बिना हम बचा नहीं सकते मेरे बहन भाइयों। पिछले दिनों में हमारे चर्च में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि कुछ खुदावंद के बेटे और बेटियों को खुदावंद ने एवेंजलिज्म के लिए कहा, और उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर वो बात शेयर करी कि हमें एवेंजलिज्म करना है, इस डेट को करना है। लेकिन मैं खुदा का दास, उस चर्च का हेड होने के नाते, मैंने जब ये बात मुझे पहले अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब मैं इस चीज को खुदावंद के हुजूर में लेके गया, लगातार इस चीज के बारे में चर्च में बातें होनी शुरू हुई, एवेंजलिज्म। कई बार हम जोश में होश खो बैठते हैं, रूहों तो जीतना चाहते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के बिना, उसके प्लान्स और योजना के बिना। कई बार जब बातें शुरू हुई तो मैं जब इस बात को लेकर जब मैसेज डलता, मैं बड़ा अपसेट हो जाता।
मैं अपने आप में फील करता, खुदावंद अगर उनसे तू बात करता है, वो चर्च के मेंबर हैं, वो चर्च के लीडर हैं, लेकिन मुझे तूने अगुवा बना के खड़ा किया, ये बात तू मुझ पर जाहिर क्यों नहीं करता? लगातार 2-3 महीने मैं इस चीज के लिए प्रार्थना करता रहा, मुझे कोई आंसर नहीं आया। और मैंने अपने स्पिरिचुअल पास्टर सलीम खान जी से इस विषय में बातचीत जब करी, मैंने कहा क्या चाहता है? मेरा क्वेश्चन वही है, तू अपने दास के द्वारा मुझसे बातचीत कर, मेरे ऊपर जाहिर कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी किसी भी मीटिंग में जाएं, चाहे संडे को चर्च, चाहे किसी भी कॉटेज प्रेयर है, किसी भी मीटिंग में जाएं, एक एक्सपेक्टेशन, आशा लेके जाएं। खुदावंद का वचन कहता है, जो भूखे हैं वही रजाए जाएंगे, जो प्यासे हैं वही तृप्त किए जाएंगे। हम सभी खाना खाकर बैठे हैं, अगर पास्टर नदीम इस वक्त आपको और मुझे ऑफर करे, क्या हम खाना खाएंगे? बताएं बताएं बताएं, प्लीज रिस्पॉन्स दे, क्या आप खाना खाएंगे? क्योंकि हम भरे हुए पड़े हैं, जगह नहीं है। इसीलिए खुदावंद का आत्मा कहता है, जो भूखे हैं वही, वहां पर शब्द लिखा गया, वही रजाए जाएंगे। एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक होप के साथ, आशा लेकर, खुदावंद तू मुझसे बातचीत कर। मेरे बहन भाइयों, हम दुनियावी कानों के साथ उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। जब भी मीटिंग में जाएं, अपने आप को खाली करके जाएं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा, खुदावंद वचन कहता है, जब वो भरता है वो दबा दबा के भरता है। मेरे बहन भाइयों, दबा दबा के भरता है। एक एक्सपेक्टेशन लेकर, एक खालीपन लेकर खुदा की पवित्र हजूरी में जाएं, ताकि जो खुदावंद अपनी सामर्थ के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भरकर आए। चर्चिस में मैसेज सेम होता है, खुदा का दास भी वही होता है, लेकिन सारे बरकत नहीं पाते। ये हमारी भूख के ऊपर, हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर संडे के लिए आना है, सैटरडे को खुदा की पवित्र हजूरी में बैठे, खुदा मुझे पूरी रीति से खाली कर, ताकि जो कल जब खुदा का दास बोले, जब वर्शिप की जाए, जब आराधना की जाए, मैं तेरी आत्मा को महसूस करूं, मैं भरता चला जाऊं। हालेलुया। और जब मैंने बताया कि मैं बात कर रहा था अपोस्टल जी के बारे में, पास्टर अंकल नरूला जी के बारे में, उन्होंने कहा, अगर तुम अपने चर्चिस में, अपने जीवन में, अपने घरानों में अगर चमत्कार देखना चाहते हो, मिरेकल देखना चाहते हो, तो 10 मिनट की दुआ में कुछ नहीं होगा, आधे घंटे की दुआ के साथ कुछ नहीं होगा, घंटे की दुआ के साथ कुछ नहीं होगा, भाग दौड़ की दुआ के साथ कुछ नहीं होगा। घंटों घंटों, दिनों दिनों खुदावंद की पवित्र हजूरी में ठहरना शुरू करें। मुझे इस बात के लिए आंसर मिल गया। मैंने अपने ब्रदर से, जिसे खुदावंद का आत्मा एवेंजलिज्म के लिए कह रहा था, एक दिन उनके मैं घर गया, मैंने उनसे बड़े प्यार से बात करी। मैंने कहा, भी आप सोचते होंगे कि तुम्हारा पास्टर तुम्हारे साथ एग्री क्यों नहीं करता। मुझे मेरी बात का आंसर मिल गया है। आप इसे कंटिन्यू करें, लेकिन खुदावंद मुझे इजाजत नहीं देता। मैं आपका गुनहगार हो सकता हूं, लेकिन खुदावंद का गुनहगार नहीं हो सकता। इसीलिए खुदावंद ने चेलों से कहा, अब भी ठहरे रहो। हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, हम सामर्थ्य को पाना चाहते हैं, लेकिन हम खुदावंद के साथ बैठना नहीं चाहते। आजकल चमत्कारों का दौर है, चमत्कारों का दौर है। चमत्कारों के लोग पीछे भागते हैं।
चमत्कार होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन वचन जिंदगियों को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन हमारे अंदर ठहर गया, जब हम खुदावंद की हजूरी में ठहरना शुरू हो गए, चमत्कार अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। मेरे बहन भाइयों, जो खुदावंद ने मुझे इवेंजलिज्म के बारे में बताया, डैनियल के जीवन में सबसे बड़ा इवेंजलिज्म हुआ। डैनियल क्या करता था? वो 3 बार खुदा की पवित्र हजूरी में ठहरता था। मेरे बहन भाइयों, और उसके बारे में लिखा है चैप्टर 5 में, डैनियल की 5 में, कि जब किसी भी बात का पूछना होता था तो स्कॉलरों को, जोशियों को बुलाया जाता था, लेकिन उससे ज्यादा डैनियल के ऊपर आत्मा काम करता था। वो खुदावंद की आत्मा के द्वारा उन चीजों का, उन सपनों का उत्तर बताता था। उसके बारे में लिखा है कि उसके ऊपर कई ईश्वरों को आत्मा है। वो जैसे हम बात करी है हमने, समझ का आत्मा, नॉलेज, विजडम का आत्मा, ज्ञान का, प्लान्स का आत्मा। क्यों उसके ऊपर था? क्योंकि वो 3 बार खुदावंद की पवित्र हजूरी में ठहरता था। खुदावंद ने पिछले दिनों में हालातों के द्वारा मुझे यह सिखाया है। प्रभु यीशु का जीवन क्या था? सारा दिन क्रूसट करता, सारा दिन हीलिंगें होती, चमत्कार होते, मौसे होते, लेकिन पूरी रात वो खुदावंद की पवित्र हजूरी में ठहरता। चमत्कार हम सभी चाहते हैं अपने जीवनों में, अपने रिश्तेदारों के जीवनों में, अपने चर्च के जीवन में, अपने घरानों के जीवन में, लेकिन खुदावंद की हजूरी में ठहरने के लिए आपके पास और मेरे पास वक्त नहीं है। प्रभु यीशु को कहना नहीं पड़ता था। जब वो लाजर की कब्र के पास गया, वहां पर लिखा है, मेरी बाइबल में नहीं लिखा कि उसने कहा हो लाजर जिंदा हो जा। अगर आपकी बाइबल में लिखा हो तो आप देख सकते हैं। मेरी बाइबल में यह नहीं लिखा कि उसने कहा लाजर जिंदा हो जा। उसकी प्रेजेंस के द्वारा जो वो कैरी करता था, जो रात भर वो खुदावंद की पवित्र हजूरी में ठहरता था, मेरे बहन भाइयों, उसकी प्रेजेंस ने, उसकी हजूरी ने लाजर को जिंदा कर दिया। उसने कहा, ए लाजर कब्र में से बाहर आ जा। हालेलुया। उसने कहा, लाजर कब्र में से बाहर आ जा। उसकी प्रेजेंस के द्वारा, उसकी हजूरी के द्वारा लाजर जिंदा हो गया। जब आप और मैं उसकी हजूरी में ठहरेंगे मेरे बहन भाइयों, उसके साथ वक्त गुजारेंगे, उसका नेचर, उसकी सामर्थ आपके और मेरे जीवन में कार्य करना शुरू करेगी, आपके और मेरे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा किसी को। जब वो सेना के पास गया, जब वो जो कब्रों में बांधा हुआ था, प्रभु यीशु की हजूरी आई, बदरूह चीखना शुरू हो गई। उसे यह नहीं कहना पड़ा, वो उसे पहचानती थी, उसकी समझ को पहचानती थी। मेरे बहन भाइयों, जब आप खुदावंद की पवित्र हजूरी में ठहरेंगे तो बदरूहों को झिड़कना नहीं पड़ेगा। वो जब आप खड़े होंगे और खुदावंद की प्रेजेंस वहां पर होगी, वो खुद ब खुद चीखे मारकर निकलना शुरू हो जाएंगे। जब गाना गलील में गया, उसने कहा, मटकों को पानी से भर दो। नौकरों ने उन मटकों को पानी से भर दिया, लेकिन जब उन्हें कहा गया, इसे निकालकर प्रधान के पास ले जाओ, उसकी पवित्र हजूरी के द्वारा, उसकी प्रेजेंस के द्वारा वो पानी दाख रस में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर अपने खुदावंद का स्वागत करें, उसका वेलकम करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस को ढूंढें, उसकी हजूर में ठहरना शुरू हो जाए। खुद ब खुद उसका आत्मा आपके और मेरे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा।
डैनियल के ऊपर ये आत्मा था। सबसे बड़ा एवेंजलिज्म जब उसे शेरों की मान में डाला गया मेरे बहन भाइयों, उस आत्मा की वजह से, उस सामर्थ की वजह से, वहां पर लिखा है जो वहां का राजा था वो सारी रात नहीं सो सका, ना तो उसने खाया ना ही उसने पिया। बेचैनी, जब आपके अंदर वो आत्मा होगा, आपके अंदर वो सामर्थ होगी, पवित्र आत्मा की ताकत होगी, तो हमारे दुश्मन रात पर सो ना सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी समर्थ को ले। सारी रात राजा सो ना सका, सुबह तड़के उठा और भागा, शेरों की मांग की तरफ भागा और चीख कर क्या कहता है, क्या कहता है, ए डैनियल, क्या तुझे तेरे खुदावन ने बचा रखा है? उसने कहा खुदावन ने मेरे में कोई गुनाह नहीं पाया, उसने मुझे बचाया। उसने अपना आत्मा भेजकर, अपनी सामर्थ भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और राजा ने हुक्म जारी कर दिया, जितने मेरे राज्य में लोग हैं जो वो मुझे छोड़ इसके खुदावंद को मानेंगे, अगर जो ना मानेगा उसको सजा दी जाएगी। एवेंजलिज्म, हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, आपका जीवन, मेरा जीवन दूसरों के लिए एवेंजलिज्म बन जाए, दूसरों के लिए नमूना बन जाए। खुदावंद का आत्मा कहता है, खुदावंद का वचन कहता है, तुम्हारी भलाई के कामों को देखकर पिता जो स्वर्ग में है उसकी स्तुति हो, उसकी बढ़ाई हो। हालेलुया। आपके और मेरे कामों को देखकर लोग ये कहे, आप किस खुदावंद की स्तुति करते हैं, आप किसको मानने वाले हैं? मसीह है, उसकी करैक्टर हमारे अंदर नहीं है, उसकी छवि अंदर नहीं है, उसके वचन को हम कैरी नहीं कर पाते। मेरे बहन भाइयों, पवित्र आत्मा खुद ब खुद आ जाएगा, खुदावंद की समर्थ आपके मेरे जीवन में खुद ब खुद आ जाएगी जब हम उसकी हजूरी में ठहरना शुरू करेंगे। सेकंड कुरिन्थियन उसकी 3:17 में ऐसे लिखा कि खुदावंद आत्मा है और जहां उसकी हजूरी होती है वहां स्वतंत्रता होती, आजादी होती है। खुदावंद का आत्मा तो चर्चेस में भी काम करता है। मेरे बहन भाइयों, क्यों हम गरीबी के गुलामी में हैं, क्यों हम बीमारियों की गुलामी में हैं, क्यों हम ना माफी, दूसरों को ना माफ करने की गुलामी में जी रहे हैं? हालेलुया। बहुत सारी गुलामियां हमारे इर्द गिर्द हैं। आजकल न्यू ट्रेंड है व्हाट्सएप की गुलामी, फेसबुक की गुलामी, सोशल मीडिया की गुलामी। चर्च में बैठे बैठे ऐसे 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 चलता रहता है। अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे मेरे बहन भाइयों, वो आपकी और मेरी इज्जत करना छोड़ देगा। बहुत तरह की गुलामी है जो हम आजकल फेस कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद का आत्मा क्या कहता है कि जहां उसकी हजूरी होती है वहां स्वतंत्रता होती है, वहां आजादी होती है। लेकिन आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं मेरे बहन भाइयों, क्योंकि हम खुदावंद के साथ ठहरना ही नहीं चाहते, उसकी हजूरी में बैठना ही नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारें, ज्यादा से ज्यादा खुदावंद की पवित्र हजूरी में ठहरें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें रिपेंट करना है। अपने गुनाहों की जो आज तक हमने किए हैं, बाइबल में लिखा है सुस्ती, लेजीनेस भी एक गुनाह है। कई बार कहते हैं चल आज चर्च की जाना, कोई गल नहीं, पास्टर को पता ही है।
आज उस मीटिंग में रहने देते जाने के लिए। ये एक गुनाह है। सबमिशन पूरी रीति से, अगर खुदाबंद में चलना पूरी रीति से सौंपना पड़ेगा। 60-40 या 30-70 नहीं चलेगा, 100%। हालेलुया। सैक्रिफाइस, हंगर, थर्स्टी, फॉरगिवनेस, लव, होलीनेस, सबसे बड़ी बात प्रेयर। सबसे बड़ी बात, हम प्रेयर के ऊपर, मुझे खुदावन ने कहा था कुछ बोलने के लिए। डैनियल के जीवन दुआ का जीवन था, प्रभु यीशु का जीवन दुआ का जीवन था। उसे कहना नहीं पड़ता था, चमत्कार हो जाते थे। सीखते रहे। जब सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे मेरे बहन भाइयों। जब सीखना बंद हो जाएंगे, हम बढ़ना बंद हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है 5 रोटी और 2 मछलियों के बारे में। प्रभु यीशु, जब तक वो प्रभु यीशु के हाथों में नहीं थी, वो बढ़ नहीं रही थी। अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे। और जैसे जैसे प्रभु यीशु तोड़ता गया, वो बढ़ती रही। जब तक आप और मैं टूटते रहेंगे प्रभु के लिए, आप और मैं बढ़ते रहेंगे मेरे बहन भाइयों। टूटना सीखें, हमें टूटना है। हमें अपनी चाहतों को, अपनी ख्वाहिशों को खुदाबंद के लिए मारना है, टूटना है। जब हम टूटते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। जब खुदाबंद तोड़ता गया, रोटियां बढ़ती रही। 5 रोटी 2 मछलियां 12 टोकरों में बचकर रही। 12 टोकरे बचे, हजारों ने खाया। हालेलुया। एक मैं उदाहरण शेयर करके बंद करूंगा। कितने लोगों ने टॉमी हिक्स के बारे में सुना है? टॉमी हिक्स एक खुदा का दास हुआ है 1954 में। वो खुदावंत को देखना चाहता था, वो खुदावंत से मिलना चाहता था। उसके पास्टर ने, उसके सीनियर ने उसे कहा कि तुझे खुदावंत की हजूरी में ठहरना है। उसने कहा मैं 40 दिन फास्टिंग में चला जाऊंगा, खुदावंत की हजूरी में ठहरूंगा। सिर्फ 40 दिन 40 रात में पानी पीऊंगा। उसने उसी तरह किया। 40 दिन सिर्फ पानी के ऊपर रहा, ना खाया ना और कुछ किया, दुआ में बैठा रहा। 40 दिन पूरे खत्म हुए। बड़ी उम्मीद है कि प्रभु यीशु बात करेगा। प्रभु यीशु ने बात नहीं करी। बड़ा निराश हुआ। फिर उसने कहा शायद ये कम है। उसने 40 दिन और फास्ट किए, पानी के ऊपर रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बार उसने फिर चाहा कि अब मैं फिर 40 दिन उसी तरह रहूंगा। वीक हो गया, कमजोर हो गया। लेकिन जब 40वां दिन खत्म होने को था, खुदा का आत्मा, खुदावंत की पवित्र हुजूरी वहां पर आ गई। उसने उसे कहा कि तुझे अर्जेंटीना जाना है, अर्जेंटीना जाना है। वो तैयार हुआ, उसने अपना सामान पैक किया और उसे कहा तुझे जुआन पेरोन को मिलना है। उसने सिर्फ नाम लिया, जुआन पेरोन। वो अर्जेंटीना को चला गया। अर्जेंटीना पहुंचा, तख्ती पर लिख के खड़ा हो गया, आई एम लुकिंग जुआन पेरोन। सभी बड़े हैरान हुए। वो उसको बड़ी और तरह से देखते। जब वो तख्ती को देखते, उससे उसके पास से गुजरते और तरह का देखते। और एक बंदा उसके पास आया, तुझे पता है तू किसे ढूंढ रहा है? उसने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन खुदावन ने कहा है जुआन पेरोन को मिलना है। उसने कहा वो यहां का राष्ट्रपति है, तुझे उसे मिलना है। उसने कहा मैं नहीं जानता, मुझे उसके पास लेके जाओ। जब वह उसके रेजिडेंस के ऊपर गया, जब वो अंदर घुसने लगा, वहां पर गन मैन ने उसे रोक लिया, उसकी तरफ गन तान दी। उसने कहा तू कौन है और किधर जाता है? उसने कहा मुझे जुआन पेरोन को मिलना है। उसने कहा तू उसे नहीं मिल सकता, वो 3-4 महीने से किसी से मिला ही नहीं अभी तक, वो तुझसे नहीं मिल सकता। लेकिन उसने कहा मुझे मिलना है, मुझे खुदा ने भेजा है। उसने कहा अगर मैं कैसे जानूं, मैं बीमार हूं,
उस गनमैन ने कहा, उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैं उसका खास हूं, अगर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तुझे अंदर जाने दूंगा। उसने उसके लिए प्रार्थना की, उसी घड़ी वो चंगा हो गया मेरे बहन भाइयों। हालेलुया। और जब वह उसे अंदर लेके गया, जब उसने जॉन पेरोन को देखा तो उसके सारे मुंह के ऊपर उसका स्किन प्रॉब्लम, उसको कोढ़ हुआ। इसीलिए उसने कहा, आज तक मैं 3-4 महीने से किसी अखबार का, किसी न्यूज का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि मेरी स्किन खराब हो गई, मुझे कोढ़ हुआ, मुझे लेपर्सी है। उसने कहा, टॉमी हिक्स ने कहा, मुझे तेरे देश में प्रचार करना है। उसने कहा, हम तानाशाह हैं, डिक्टेटरशिप है, यहां पर प्रचार नहीं किया जाता, तू कैसे कर सकता है? और जॉन पेरोन ने कहा, अगर तू मुझे चंगा करेगा, अगर तेरा खुदा मुझे चंगा करेगा, मैं तुझे परमिशन दूंगा। और टॉमी हिक्स ने उसके लिए प्रार्थना की, और वो उसी घड़ी उसकी स्किन बच्चे की न्याय मेरे बहन भाइयों हो गई। हालेलुया। और उसने वहां के अटलांटा स्टेडियम में, जहां 25,000 लोग बैठते थे, उसने ये ऐलान किया, मैं और उपराष्ट्रपति और मेरी सारी कैबिनेट, यहां के सारे लोग वहां पर आएंगे, अगर कोई नहीं आएगा उसे मैं नौकरी से निकाल दूंगा, उसे मैं पनिश करूंगा। वहां पर 25,000 लोगों से स्टेडियम भर गया, लेकिन 4 गुना लोग, 1 लाख लोग उस स्टेडियम के इर्द गिर्द रहे, उनको सीट नहीं मिली। खुदावन ने उसे माइटली उस कंट्री में यूज किया, चमत्कार होने शुरू हो गए, खुदा का नाम उस कंट्री में आ गया मेरे बहन भाइयों। और जब वह होटल में गया, 4-5 हजार लोग वहां पर उसकी वेट कर रहे हैं होटल के बाहर। वहां पर उसने लेडीज का लिबास पहनकर, ड्रेस पहनकर वहां से उसका गुजर हुआ, क्योंकि वो जानता था लोग मुझे यहां से जाने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद उसको एक बार फिर रशिया में जाने के लिए अनुग्रह हुआ, वहां के राष्ट्रपति को मिला, उन्होंने उसे मना कर दिया कि तू प्रचार नहीं कर सकता। उसने कहा राष्ट्रपति को, क्या तेरी पत्नी कैंसर की पीड़ित है? वो हैरान हो गए, इसे कैसे पता? उसने कहा, अगर तू अगर तुझे पता है, तेरा खुदा उसे चंगा कर सकता है। उसने कहा, उसका फोन करके पूछ, वो चंगी हो गई है यीशु मसीह के नाम से, उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे बहन भाइयों। और रशिया में उसे कहा गया, उसे परमिशन दी गई कि तू प्रचार कर सकता है। लेकिन जब वो प्रचार करने के लिए आया, और अब उसे रशिया की लैंग्वेज नहीं पता, कैसे प्रचार करे? उसके लिए इंटरप्रिटेशन करने के लिए किसी को बुलाया गया कि वो रशियन बोलकर उसका तर्जमा करे। जब उसने कहा कि हमारा सच्चा और जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है, उस औरत ने ट्रांसलेट करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हमारा तो जो कुछ है, हमारा राजा, हमारा किंग है। उस लेडी ने टॉमी हिक्स के मुंह पर थूक दिया। उसने कहा, तू कैसे कह सकता है कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है? और उसने वो ट्रांसलेट कर छोड़ गई। अब कोई ट्रांस करने वाला नहीं। खुदा का आत्मा इतने जोरों से उतरा मेरे बहन भाइयों कि टॉमी हिक्स रशियन बोलना शुरू हो गया। खुदावन की आत्मा के द्वारा उसने उसे इनकरेज किया कि वो रशियन बोले, और उसने 1 घंटा वहां पर खुदावन के नाम की स्तुति करी और बढ़ाई की मेरे बहन भाइयों। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ वो खुदावंद की हजूरी में ठहरा था। अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में चमत्कारों को देखना चाहते हैं, खुदा के कामों को देखना चाहते हैं, अपनी कलीसियों को, अपने परिवारों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो उस खुदावंद की हजूरी में ठहरना शुरू कर दें। उसकी प्रेजेंस को अपने जीवन में ले आएं, तो खुद ब खुद चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, समय काफी बीत चुका है। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को खाली करें, अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। अगर कोई हाथ उठाकर उसकी स्तुति करना चाहता, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करना शुरू करे। खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में है, खुदावंद का आत्मा आज हमारे बीच में है और वो हमारे साथ बात कर रहा है। हालेलुया। जो भी चाहता है
कि खुदावंद की हुजूरी इसके जीवन में आए, उसकी प्रेजेंस के लिए भूख और प्यास को बढ़ाए। खुदावंद से कहें, मैं तेरी प्रेजेंस को लेना चाहता हूं, मैं तेरी हुजूरी को अपने जीवन में लेना चाहता हूं। पुकारना शुरू करें मेरे बहन भाइयों। एक दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं कि मेरा साथी मेरे साथ वाला क्या कर रहा है। अपना रिश्ता खुदावंद से सीधा करें, अपनी आंखों को खुदावंद की तरफ लगाएं। वो है जो महिमा के योग्य है, वो जो है स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब पत्र यूहन्ना 120 लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर लिखा है प्रार्थना नहीं बल्कि ये लिखा है वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक मन हो जाए, इधर उधर की बातों की तरफ मन ना लगाए। अगर किसी को माफ करने की जरूरत है, माफ करें, खुदावंद की पवित्र हुजूरी में माफ करें। अगर माफी की जरूरत है तो माफी मांगे। अगर हमने किसी के खिलाफ गलती या गुनाह किया है, मेरे बहन भाइयों, कई बार हमारे हालात हमारी बरकतों को रोके रखते हैं। कई बार हमारी जरूरतें खुदावंद पूरी नहीं करता क्योंकि हम उसको अपने जीवन में काम करने नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में 2 मिनट ठहरें। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करनी शुरू करें। खुदावंद आपके जीवनों को जानता है, मैं आपके जीवन को नहीं जानता, आप किसी और के जीवन को नहीं जानते, लेकिन कोई है। उसने कहा, करंथियों में ऐसे लिखा है, अगर तुम अपने आप को जांचते तो जांचे ना जाते और मुझसे सजा ना पाते। हालेलुया। अपने आप को जांचते परखते हुए खुदावंद के हुजूरी में आए मेरे बहन भाइयों। वो है जो महिमा के योग्य है, वो जो हमारी जीवनों को जानता है, वो आज क्षमा करना चाहता है, वो आज आजाद करना चाहता है, वो पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है, वो समर से भरना चाहता है। अगर आप चाहते हैं हमारे घर बदल जाए, अगर आप चाहते हैं पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं बड़े बड़े मौजे चमत्कार हमारी कलीसिया में होने शुरू हो जाए, हमारे घरों में, हमारे जीवनों में होना शुरू हो जाए, अपने रास्तों को सीधा कर लें। कोई है आपको आपकी तरफ देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे स्वर्ग और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे पाक पवित्र जिंदा खुदावन, आज की शाम तेरे बेटे और बेटियां प्रभु तेरी हजूर में झुके हैं प्रभु, इस उम्मीद के साथ पिता परमेश्वर जीवन में कुछ बड़ा होगा। खुदावंद, खुदा आप बड़े खुदावंद हैं, आप चमत्कार करने वाले खुदावंद हैं, आप रहम करने वाले खुदावंद हैं। खुदा आपका वचन कहता है, तेरे गुनाह चाहे लाल सुर्ख कंची रंग के क्यों ना हो, उन्हें बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा, उनकी नाई सफेद कर दूंगा। उन्हें मैं कभी याद ना करूंगा, उन्हें मैं समंदर की तह में फेंक दूंगा। आज कोई है जो तुम्हें माफ करना चाहता है, आज कोई है हमारे जीवनों को बदलना चाहता है, हमारे हालातों को बदलना चाहता है, हमारे बंधनों को तोड़ना, कि जहां उसकी हजूरी होती वहां आनंद की भरपूरी होती है, वहां आजादी होती है। आज होने दे, अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे। वो आजाद करना चाहता है, वो आजाद करना चाहता है। हमारे स्वर्ग और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे पाक पवित्र जिंदा खुदावंद, हम एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरे सन्मुख आते हैं। आज ने दिन पर हमारी मदद सहायता की, अपने दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया, हमने बड़ी आशीष और बरकत को देखा। एक अच्छी आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा ईमान है, हमारा भरोसा है उस आराधना को, उस स्तुति को, उस बढ़ाई को आपने सुगंध की लाई, उस पवित्र इत्र की लाई अपने नेत्रों में कबूल किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप इस कलीसिया में लेके आए प्रभु जी, मैं आपके वचन को पिता परमेश्वर बांट सका, आपके मैसेज को पिता परमेश्वर, जो आप अपने बेटे और बेटी से चाहते हैं कि हम तेरी हजूरी में ठहरे प्रभु जी। तूने अपने चेलों से कहा ठहरे रहो, हमें ठहरना सिखा प्रभु, ताकि हम भी उस आत्मा समर्थ को पाए प्रभु। पिता परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों दया करें, आज के बाद पिता परमेश्वर ये बढ़ना शुरू हो जाए। अगर किसी तरह की रुकावट है, किसी तरह की कमजोरी है, तो आपका वचन कहता है थके बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज हर बोझ, हर कमजोरी, हर बंधन यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। आपकी सामर्थ, आपका पवित्र आत्मा कंट्रोल करे। यीशु राजा एक एक जीवन को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी, एक एक जीवन को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी। आज के बाद जीवन बदल जाएं, आज के बाद जीवन जीने के ढंग बदल जाएं, आज के बाद रूहों को जीतने वाले बन जाएं प्रभु।
तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज की खूबसूरत शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने दास को पिता परमेश्वर, पास्टर नदीम को, उनकी पूरी टीम को प्रभु जी, उनके चर्च को जिन्होंने मेहनत करके प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा किया प्रभु जी, उन्हें 100 गुना होकर बढ़ाए पिता परमेश्वर। आज के बाद पिता परमेश्वर ये चर्च की हदें, सरहदें यीशु मसीह के नाम से बढ़े। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लोग पिता परमेश्वर चर्च को ढूंढते हैं, सलों में आए और इस कलीसिया का हिस्सा बने पिता परमेश्वर। वो आपका आत्मा कर सकता है। हालेलुया, जैसा डैनियल के द्वारा पिता परमेश्वर वो पूरा देश बदल दिया गया पिता परमेश्वर। इस मिनिस्ट्री के द्वारा एक लंदन में एक बड़ी बेदारी आए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, यह चर्च उस बेदारी का हिस्सा हो पिता परमेश्वर। डॉक्टर साहब के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं। पाकिस्तान में नहीं पिता परमेश्वर, दुनिया भर में उन्हें मुनादी के लिए, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। उनके घरानों को बड़ी आशीष और बरकत देना। एक बार फिर सारा जलाल, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आप ही के नाम को मिले। मांग लेते आपके सच्चे और जिंदा खुदावन अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब मिलके कहें आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत के नाम की तारीफ हो, खुदावंत का शुक्र करें, ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। वो बड़ा खुदावंत है। जोर से जोर से जोर से ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Pastor Robert. Wonderful message. And what I will say कि खुदावंत के नाम को जलाल। हमारा जो थीम आज का है वो है रूल कुद्दस से मामूर कलीसिया और खुदावंद के मिशन के लिए बाख्तियार। डॉक्टर खालिद से हमने सुना कि खुदावंद ने किस तरह कलीसिया को अपने पाक रूह से मामूर किया, और पास्टर रॉबर्ट ने हमें बताया कि वी हैव टू नो व्हाट इज़ द मिशन। हमें इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन इख्तियार हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब वी विल नो कि व्हाट इज़ आवर ड्यूटी, व्हाट इज़ द टास्क। If you don't know the task, you will not know how to do that sort of things. So God has given you the Holy Spirit. God have poured His Holy Spirit upon you. We just only need to know what is the mission for me. For Bishop साहब के लिए मिशन डिफरेंट है, पास्टर के लिए मिशन डिफरेंट है, पास्टर सैम के लिए मिशन इज डिफरेंट, फॉर जैनी एंड फॉर साइमन इज द मिशन इज डिफरेंट, बाई एल्बर्ट बाजी पुष्पा के लिए मिशन डिफरेंट है, बाई गिल के लिए मिशन डिफरेंट है, जो सिस्टर्स पीछे बैठी हैं इनके लिए मिशन डिफरेंट है। एवरीबॉडी हैज अ मिशन, एंड दैट मिशन यू विल डू विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। Only not this pulpit, only not this place, our worship, our church is the only to mission is for God. Whatever God has given you the talent, wherever God has put you is the mission for you from God. Please give a round of applause for both pastors once again. Please take your seats. Just we will hear one song from one of our choir member, Unil.